So today we will discuss about how to obtain a pure copper sulfate from an impure, okay, from an impure sample. Impure sample में से हम लोग कैसे pure copper को extract करते हैं, that we will learn through this activity. Activity number 2.9. Everyone look at the activity number 2.9. Okay, activity number 2.9. देखो what they have mentioned. Take some, that is approximately 5 grams of impure copper. Okay, take around 5 grams, 5 grams of impure copper. Okay, this is the sample that was impure copper. This is the sample that you have to take 5 grams of impure sample of the copper sulfate. Okay, copper sulfate का ये sample है, ये हमें लेना है because right now our aim is to pure it. Okay, so this copper sulfate, impure copper sulfate may contain some impurities. Okay, dust हो सकता है, soil हो सकता है, or any kind of impurity which is present in its impure form of copper sulfate. Okay, or हो सकता है. Now dissolve it in a minimum amount of water. Okay, so take very small quantity of water. Take small quantity of water. Okay, take very small quantity of water and dissolve this impure copper sulfate. Dissolve this impure copper sulfate into that water. Okay, so वी हैव टेकन वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर. ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लिया है हम लोगों ने. ओके, क्योंकि हमें कुछ ही पार्ट उसमें से सेपरेट करना है. ओके, सो फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट. ओके, यू नो दैट फिल्ट्रेशन प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, इम्प्योरिटी निकाल देंगे. ओके, इम्प्योरिटी जो भी यहाँ पे सॉइल सैंड कुछ भी हो सकता है. Now evaporate water from the copper solution so as to get a saturated solution. Evaporation कैसे करेंगे? Evaporation हम लोग, what is the activity that we will have to perform for evaporation? Okay, evaporation के लिए क्या करना पड़ेगा? Yes, evaporation के लिए क्या करना पड़ेगा? Heat करना पड़ेगा. Heat करना पड़ेगा. किसको? जब ये dissolve हो गया है, copper sulfate when it is dissolved, okay, in a very small quantity of water, that solution you will have to heat. When you will heat that solution, okay, जब हीट करोगे आप लोग इस सॉल्यूशन को, जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो ये क्या क्रिएट करेगा, एक सॉल्यूशन क्रिएट करेगा वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ओके, जिसमें लिक्विड रहेगा. उसको आपको क्या करना है, इवेपोरेट करना है. एंड इस इवेपोरेशन इज डन, यू नो इवेपोरेशन कैसे करते हैं, हीट देके, बराबर ना. तो उस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे. एंड व्हेनेवर वी आर प्रोवाइडिंग अ हीट, व्हाट विल हैपन, this will get evaporate. क्या evaporate हो जाएगा, water content from the copper sulfate. उसको हमने पहले फिल्टर किया है और बाद में इवेपोरेशन किया है. फिल्टर करने के बाद ये क्या हो जाएगा, इंप्योरिटी निकल जाएगी. ओके, इंप्योरिटी क्या हो जाएगी, फिल्टर करने के बाद निकल जाएगी. नाउ वी वांट टू रिमूव वाटर कंटेंट आल्सो. पानी का जो कंटेंट है उसमें कॉपर सल्फेट में, वो भी हमें क्या करना है, बाहर निकाल देना है. And that can be done with help of evaporation. देखो steps and the sequence is very much important here. हम लोग ऐसे नहीं कर सकते यहाँ पे पहले evaporation कर दिया, ओके, और बाद में filtration करेंगे, इसका कुछ फायदा नहीं होगा. पहले क्या करना पड़ेगा, हमें filtration करना पड़ेगा. We'll have to remove the impurity which is present in the impure sample. Impure sample में जो impurity है उसको पहले remove करना पड़ेगा, and that is done with the help of filtration process. Okay, so after filtration process, the evaporation process is done, where the small quantity of water जो है ये वाला small quantity of water जो यहाँ पे ऐड किया था वो क्या हो जाएगा, remove हो जाएगा. So in this evaporation process, what will happen, water quantity, okay, small quantity of water है, water क्या हो जाएगा, removed हो जाएगा. So water it will get removed, okay, from the sample. I hope that it is very much understandable because with the help of this flow chart. Now कवर द सॉल्यूशन विद द फिल्टर पेपर. अभी क्या करेंगे हम लोग, जो सॉल्यूशन मिला है हमें, ओके, जो सॉल्यूशन हुआ है हमें, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से क्या कर देंगे, फिल्टर पेपर लगाएंगे. यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा देंगे. ओके, फिल्टर पेपर, कवर द सॉल्यूशन विद द फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर. नॉर्मल एटमॉस्फेरिक रूम टेम्परेचर पे उस क्या कर देंगे हम लोग, उसको जो मिलेगा सब्सटेंस जो मिलेगा हमें, okay, so we'll keep it at room temperature to cool slowly, okay, for a day. उसको कूल होने देंगे. जब वो कूल हो जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा वो, yes,
You will obtain the crystals of copper sulfate in this dish. You will obtain a crystal. This is very important word. That is crystal of copper sulfate. क्या मिलेंगे हमें? क्रिस्टल मिलेंगे. क्रिस्टल क्यों मिलेंगे अभी हमें? बिकॉज उसमें जो वाटर कंटेंट था वो रिमूव हो गया. यहाँ पे फिल्टर पेपर हमने यहाँ पे रखा गया था. फिल्टर पेपर अगर आप ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल में तो उसमें क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं. थ्रू दिस इवेपोरेशन प्रोसेस विल टेक प्लेस. ओके, जितना भी और कुछ छोटा मोटा वाटर कंटेंट जो बच गया था वो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर से वो चला जाएगा, वो इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. और जो हमें यहाँ पे मिलेगा वो क्या मिलेगा? कंपोनेंट, ड्राई कंपोनेंट मिलेगा. दैट वी विल गेट द ड्राई क्रिस्टल ऑफ कॉपर sulfate. That will get the dry crystals of copper sulfate in this China dish. And this process to obtain this complete process to obtain the copper crystals, okay, copper crystals from this impure sample of copper sulfate. This complete process is known as the crystallization process. Very important process. This is called as the crystallization process. Well, now why it is called as a crystallization? Finally, we have obtained the copper sulfate in its crystal form. How we have obtained it in the crystal form? Because of the process of crystallization. Okay. So what do you observe in the China dish? Okay, क्या मिलेगा हमें? Finally, crystals मिलेंगे. Do the crystals look alike? Yes, the crystals look alike. वो एक जैसे दिखाई देंगे. Okay. How will you separate the crystal from the liquid in a China dish? वो कैसे separate कर सकते हैं हम लोग? Yes, by the process of evaporation. इसको हम लोग क्या करेंगे? Evaporate करेंगे. पानी का जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा. ओके, पानी का कंटेंट वेपराइज हो गया तो बचा क्या उसमें? ड्राई क्रिस्टल से बचे. So in this way we can obtain the crystals, okay, through the process of crystallization. So the crystallization method is used to purify the solids, okay, to purify the solids. देखो हमने क्या किया था? Impure जो copper sulfate था, okay, solid है, okay, it is in a solid state. This impure copper sulfate initially it was in a solid state, and that's why it was very easy to convert into its crystal form. So crystallization method is used to purify solids. For example, salt we get from sea water. So this is very important example. जो हमें salt जो मिलता है, अगर देखा होगा आपने कभी, okay, salt जो हमें sea water से मिलता है. तो generally sea water में बहुत ही different salts होते हैं. There are variety of salts which are present in the ocean. Okay, ocean में जो पानी होता है, उसमें बहुत सारे different salt होते हैं. But हमें क्या चाहिए उसमें से? हमें चाहिए sodium chloride. Okay. So, for example, the salt we get from sea water can have many impurities in it. To remove these impurities, the process of crystallization is used. Okay, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ to obtain a salt. To obtain salt from sea water. To obtain a salt from sea water. Okay, sea water में से हमें क्या चाहिए? सॉल्ट चाहिए. एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. आप लोगों को पता होना चाहिए क्या करते हैं. जनरली जो सैंपल है वो पहले कलेक्ट करते हैं, बराबर है. जनरली क्या करते हैं? सी वाटर को कलेक्ट करते हैं एट दी, ओके, देन उसको क्या करते हैं फिर? देन दैट सी वाटर इज केप्ट इन पैसेज में रखते हैं. ओके, पैसेज में रखते हैं. एंड when it gets evaporate, water gets evaporate, उसमें से कुछ impurities बाहर निकाल देते हैं and we get the pure form of the salt called as the salt. Okay, salt crystal मिलता है. Okay, it is sodium chloride we get. So crystallization is the process that separate a pure solid in the form of crystals from a solution. Okay, so it separates the pure solid, okay, from its solution. So it separates solid crystal from its solution. Okay, क्योंकि क्या किया हमने? इसके सॉल्यूशन से हमने क्या किया? सॉलिड क्रिस्टल से उनको सेपरेट आउट किया.
So crystallization technique is better than simple evaporation technique. So this crystallization जो technique है, it is बेटर दैन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। क्यों बोला गया है ऐसा? अगर हम लोग सिर्फ इवेपोरेट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ओके, सपोज मान लो ये सैंपल है, ओके, ये सैंपल है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हमने क्या किया, इस सैंपल को पहले यस स्मॉल क्वांटिटी में क्या किया, वाटर से मिक्स किया, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर से मिक्स किया, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर से हमने क्या किया, मिक्स किया। और उसके बाद में हमने कौन सा प्रोसेस किया, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस किया। एंड आफ्टर फिल्ट्रेशन हमने जो प्रोसेस किया दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन एंड द रेस्ट इवेपोरेशन इट वाज डन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर इसके ऊपर क्या किया हमने, ऐसे रख के रखा। तो देखो स्टेप्स कौन से, फर्स्ट स्टेप है फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है इवेपोरेशन, फोर्थ स्टेप क्या है, दिस कवर। ओके, कवर किससे कर रहे हैं हम लोग, फिल्टर पेपर से कर रहे हैं, फिल्टर पेपर से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। देन फाइनली वी आर गेटिंग द क्रिस्टल फॉर्म। यहां पे क्या मिल रहा है हमें, क्रिस्टल फॉर्म में मिल रहा है। सेम प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर द सोडियम क्लोराइड व्हेन इट इज एक्सट्रैक्टेड, व्हेन इट इज टेकन आउट फ्रॉम द सी वाटर। सी वाटर से जो भी हम लोग फॉर्म करते हैं ये सॉल्ट, ओके, that is the process called as a crystallization. Now the question comes in your mind, why the process of crystallization is very better, crystallization process क्यों बेटर है, ओके, देन सिंपल इवेपोरेशन, देन सिंपल इवेपोरेशन, सिंपल इवेपोरेशन। ओके, क्वेश्चन भी है आपके टेक्स्ट बुक में, व्हाई द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर, फार बेटर देन द सिंपल इवेपोरेशन। सो लुक एट द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट दे आर डूइंग फिल्ट्रेशन आल्सो, ओके, बट देन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल इवेपोरेशन प्रोसेस। सिंपल इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होगा, सिर्फ हम लोग उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, हीट करके इवेपोरेट करेंगे, बराबर में हीट करके इवेपोरेट करेंगे। तो जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसमें जो कंटेंट होते हैं, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, तो इट इज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, बराबर है ना। क्योंकि हम लोग सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक में क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ हम लोग हीट करेंगे, किसको, वी विल हीट द सॉल्यूशन। हीट किसको करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, बराबर है। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन को जब हम लोग सिर्फ हीट करेंगे तो क्या हो सकता है, उसमें जिसका सपोज बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेट होगा ही नहीं, बराबर है ना। तो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो इवेपोरेट होके it will get vaporized into the atmosphere, but what will happen to the impure part whose boiling point is higher, तो वो वहीं पे वहीं के वहीं रह जाएगा, बराबर है ना। That's why through this simple evaporation we cannot separate all the content, but by the process of crystallization, as we are filtering it, as we are mixing the sample with small quantity of water and then we are heating it, what will happen, they will get separate out, okay, they will get separate out, and by the process of filtration, by the process of filtration, by the process of filtration, all the impurities from the impure sample will get removed, okay, and we get the better crystal quality in case of this process that is called as the crystallization. So I hope that you have understood the process crystallization and simple evaporation. Simple evaporation तो हमें आज तक पता है। Simple evaporation कैसे होता है, अगर मान लो कंटेनर, कंटेनर में उसमें पानी ले लिया आपने, उसको हीट किया, बराबर है, इस सैंपल को हीट किया, ये वाटर है, इस सैंपल को आपने क्या किया, हीट किया, ओके, हीट लाइक दिस, हीट किया, ये क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, दिस गेट evaporate. So this is simple technique of evaporation, okay. So there is a difference between crystallization and the evaporation. Some solids decompose or some not, okay, क्योंकि क्या होता है, कुछ solids decompose हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, okay, इसमें simple evaporation में। Then some impurities may remain dissolved in a solution even after some impurities may remain dissolved, okay, in a solution. So evaporation, these contaminate the solid, okay, evaporation के बाद वो solid में दिखाई देंगे। What is the application of this process? Crystallization, yes, application. What is the application of this crystallization process? क्या application रहेगा? What will be the application of this process? Crystallization process, yes. क्या हो सकता है application? अभी तो देखा हम लोगों ने, but
what we are doing, salt, extracting the salt from its impure factor, impure part. So purification of the salt, okay, that we get from the sea water. Okay, so यहाँ पे लिखता हूँ purification, purification, purification of salt. Okay, that we get, okay, that we obtain from sea water, that we obtain from the sea water में से जो हमें मिलता है. सेकंड वन, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है. सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल, या आप लोगों ने घर पे ऑब्जर्व किया होगा. सेपरेशन ऑफ द क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स ऑफ एलम. ओके, एलम, ए एल यू एम, ये याद रखो ये वाला वर्ड एलम. एलम किसको बोलते हैं? तुरटी, मराठी में जिसको बोलते हैं तुरटी ना, दैट इज कॉल्ड एज एलम. ओके, सो this is called as alum. कभी कभी alum लो और you dissolve this alum, okay, into any water sample, तो क्या हो जाता है? Okay, impurity नीचे कलेक्ट हो जाती है. Okay, impurity क्या हो जाती है? नीचे कलेक्ट हो जाती है. So separation of crystal of alum from the impure sample, impure sample. Thus, by choosing one of the above method, okay, either simple evaporation method or crystallization method, according to the nature of the component of a mixture, we get pure substance. हमें क्या मिलता है? Pure substance मिलता है. Okay, by these two methods, simple evaporation or the crystallization. So with the advancement in the technology, many more methods of separation techniques have been devised. अभी तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स आ गए हैं, various methods by which separation can be done. Okay, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जितना हमने पढ़ा है उतना ही है. Okay, there is no limit. बहुत सारी प्रोसेसेस है जिसमें सेपरेट किया जाता है. ओके, डिफरेंट सब्सटेंस दे आर सेपरेटेड, different substances they are separated. There are various, the technique is advanced. Okay, nowadays. In cities, drinking water is supplied from water works. A flow diagram of typical water works is shown. Okay, so we'll see right now the flow chart is given. Okay, diagram is given as well as the flow chart is they have given water purification system in a water works. Okay, तो कैसे उसको प्यूरिफाई करते हैं वो देखेंगे एंड दैट वी विल अंडरस्टैंड हाउ दे आर प्यूरिफाइंग दिस वाटर. ओके, कैसे प्यूरिफाई हो रहा है यहाँ पे वाटर देखेंगे हम लोग. ओके, so I want to look at the figure number 2.30. Okay, that I am going to draw here right now. So this one is a reservoir. Okay, ये reservoir है जिसमें क्या है? वाटर स्टोर करके है. This is called as a reservoir. Reservoir. Okay, reservoir. इस रिजर्वायर से हम लोग क्या करेंगे? सैंपल लेंगे वाटर का. कहाँ पे? टैंक पे. दैट इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन टैंक. तो ये वाली होगी हमारी सेडिमेंटेशन टैंक. ओके, so I'm going to give the name this as a sedimentation, sedimentation tank. Sedimentation tank. ओके, क्या होता है सब इसमें देखेंगे हम लोग. सेकंड है, सेकंड में जा रहा है पानी को. ओके, देन इट इज गोइंग टू द सेकंड चेंबर में जा रहा है. ओके, यू सी व्हाट इज द नेम? लोडिंग टैंक. दिस इज कॉल्ड एज द लोडिंग टैंक. ओके, लोडिंग टैंक. This is called as a loading tank. Third one is the filtration tank. Okay, third one is the filtration tank. Filtration tank में important वर्क है, important थिंग होती है यहाँ पे. आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंट साइजेस के आपको यहाँ पे स्टोन मिलेंगे, डिफरेंट लेयर्स दिखाई देंगे आप लोगों को. ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा मैं. ओके, वाटर, फाइन सैंड, ग्रेवल एंड कोर्स ग्रेवल. ओके, नाम लिख दो उसके. And chlorination after this sample which is taken here. Okay. Chlorination, and finally is the water. Water. Okay. This carbon dioxide. This is filtration tank. Filtration tank. Okay. So this is the flow diagram. Okay, this is the flow diagram. What is happening? What are you observing?
the different components, okay, in water purification system. Okay, ये है water purification system, water purification system, water purification system. Okay, so what is happening? The different components we are looking at. The very first one is the reservoir, जहाँ पे क्या है, वाटर को स्टोर करके रखा है, बराबर है ना? जहाँ पे वाटर को क्या है, स्टोर करके रखा है, वहां से पानी सबसे पहले कहाँ पे आएगा? सेडिमेंटेशन टैंक में. What is the meaning of the sedimentation tank? What will happen in this sedimentation tank? Sedimentation tank में क्या होता है? जो heavy particles होते हैं, okay, that will settle down. Okay, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ sedimentation tank में कौन सी प्रोसेस हो रही है? So this heavy particle, कौन से हेवी पार्टिकल है? तो जो हेवी पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे वाटर में, इम्प्योरिटी बोल सकते हो. ओके, हेवी पार्टिकल विल सेटल डाउन, हेवी पार्टिकल विल सेटल डाउन. तो कैसे सेटल डाउन हो जाएंगे? बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी, उनकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी. पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है, जो इम्प्योर पार्टिकल्स है, उनकी डेंसिटी ज्यादा है और वो क्या हो जाएंगे? ये ऐसे जाके नीचे सेटल हो जाएंगे. That will settle down in the sedimentation tank. Okay. उसके बाद that water after sedimentation process, after removing impurity which is of larger size, okay, of larger size, इसमें जो भी larger size impurity है वो क्या हो जाएगा? वो नीचे सेटल हो जाएगा. And this is what the filter होगा, बराबर है ना? ये वाला जो particles है उसमें larger size particles that will get separate with the help of sedimentation tank. कौन सा प्रोसेस हो रहा है एक्चुअली? क्या प्रोसेस हो रहा है इसमें, इस टैंक में? They are settling down. Okay, these particles they are settling down because of their density. समझ में? ये लिखना है आपको, ऐसे लिखना है इसका. उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. और हमें पता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या हो जाता है? नीचे चला जाता है. ओके, तो ऐसा हो जाएगा, पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? नीचे. नो, अभी कुछ क्या हो सकता है इसके बाद? देयर आर फ्यू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ क्ले, बराबर है? क्ले हो सकता है, कुछ सॉइल पार्टिकल्स रह सकते हैं वाटर में. सो हाउ टू ट्रीट देम? सो दे आर ट्रीटेड इन दिस लोडिंग टैंक. लोडिंग टैंक में क्या होता है? एलम अभी जस्ट मैंने तो बताया था, एलम. ओके, एलम फैक्ट्री, ओके, जो भी जिसको बोलते हैं. सो दैट इज यूज्ड. ओके, वो यूज करते हैं और क्या हो जाता है? जो क्ले पार्टिकल है उसको क्या कर लेते हैं? सेटल डाउन करते हैं. जब भी एलन इज टेकन एंड पानी के अंदर एलन घुमाओगे तो क्या हो जाता है? उसमें जितने भी पानी के अंदर जितने भी कंटेंट है, पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स लाइक क्ले पार्टिकल्स, दैट विल गेट सेटल डाउन. सो एलन इज एडेड टू सेटल डाउन thing. So by using alum, okay, alum is added here, alum is added in this loading tank. So this will settle down some soil particles हो सकते हैं, soil या फिर clay के जो particles है वो क्या हो जाएंगे? settle down soil और clay particles, बराबर है? settle down हो गया ये वाले clay और particles. Now in a filtration tank, okay, so in a filtration tank के बाद में पानी क्या filtration tank में, अभी इसमें क्या होगा? So remove all the suspended impurities from the water. तो ये filtration tank का काम क्या है? filter करना. Okay, not only clay particle, not only heavy particle, जो भी particle देखे, कौन से particle? That is called as a suspended particle. We have seen suspension, पढ़ा है क्या हम लोगों ने? Suspension particle and colloidal particles पढ़ा है हम लोगों ने? Suspended particles, बराबर है? And colloidal particles. Okay. So this will create the suspended particles like a chalk, बराबर है? Chalk powder in a water create suspension. Okay. So suspended particles will get separate. क्या करेंगे हम लोग इसमें? जितने भी suspended particles है इस water में, with the help of this filtration tank. So in this filtration tank आप देख सकते हो वहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या यूज किया हुआ है? Fine sand is used, gravel is used, coarse gravel is used. So these are the substances. इसलिए देखो मैंने यहाँ पे different shape में different structure में निकाला. ये एक लेयर है, ओके, एक लेयर है, दूसरी ये वाली लेयर है, ओके, sand रहती है, ओके. To remove this, okay, so this will act as the
फिल्टर। फिल्टर का काम क्या होता है? फिल्टर देखा है हम लोगों ने, फिल्टर का काम क्या होता है? कुछ भी जो पार्टिकल जा रहा है उसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर लाता है। सेम वे the water which is passing from loading tank to this filtration tank, ये फिल्टर होने के बाद ही यहाँ पे जाएगा, बराबर है? नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। तब जब वाटर जब यहाँ पे जाएगा, ओके, फिल्ट्रेशन टैंक में जब जाएगा तो क्या होगा? दिस वाटर विल हैव टू पास थ्रू डिफरेंट लेयर्स। ये वाटर को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट लेयर्स से उसको पास होना पड़ेगा। एंड व्हेन इट इज पासिंग थ्रू दिस डिफरेंट लेयर्स, ओके, कोर्स, ग्रेवल, सैंड, इन सब से जब वो पास हो रहा है तो क्या होगा? उसमें जितनी भी इम्प्योरिटी रह जाएगी वो ये पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, ओके, बिकॉज इनके बीच में जो गैप रहेगा बिल्कुल माइन्यूट गैप रहेगा, बराबर है? थ्रू व्हिच दिस वाटर कैन पास, ओके, एंड सो व्हाइल पासिंग इट द ऑल सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इम्प्योरिटी सस्पेंडेड पार्टिकल बोल सकते हो, जितनी भी है वो फिल्टर हो जाएगी, वो यहीं पे रह जाएगी, बराबर है? वो यहीं पे रह जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा जो भी हमारे घर में जो प्योरिटी के वगैरह जो फिल्टर रहते हैं ना, देखा होगा आपने, बराबर, जिसमें हीट चेंज करते हैं, ओके, सो इट इज ऑल सेम थिंग, उसमें भी यही वाला मटेरियल होता है, यही वाला कंसेप्ट होता है, बराबर है? उसको क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है आपको सर्टेन टाइम, ओके। तो क्या हो जाता है? द गैप व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन दिस सब्सटेंस, वो क्या हो जाएगा? बिकॉज़ ऑफ कलेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज, बिकॉज़ ऑफ कंटीन्यूअस कलेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज इन द स्पेस, जो भी छोटे-छोटे जो गैप होंगे उस स्पेस में क्या हो जाएगा? ये इम्प्योरिटी जाके बस जाएगी और पानी बाद में जा नहीं पाएगा। दैट टाइम दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें चेंज करना पड़ेगा, ओके। जैसे हम लोग घर पे पानी का फिल्टर किट चेंज करते हैं, वैसे उसी तरह दिस इज द फिल्ट्रेशन टैंक, okay, this is the filtration tank. All the suspended particles will get absorbed and the remaining water will be sent to the tank, and that is called as the chlorination tank, okay, chlorination tank. So these are chlorinated। ये chlorinated क्यों करते हैं? हो सकता है कि वाटर कंटेंट में बैक्टीरिया हो, कुछ वायरस हो, बराबर है ना? वायरस बहुत स्मॉल नैनो पार्टिकल्स रहते हैं, तो उसमें से भी चले आएंगे एकदम में, बराबर है? सो दैट कैन बी किल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोरीनेशन, दैट कैन बी किल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोरीनेशन। कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ वायरस हो सकते हैं, दैट कैन बी क्लोरीनेटेड, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन ये वाटर को ट्रीट करेंगे, ओके। आप ड्रॉप डालते हो घर पे, ओके, ड्रॉप डालते हो ना क्लोरीनेटेड, बराबर, इसके लिए क्लोरीनेटेड ड्रॉप है, ओके। उसमें फिर क्या होता है? बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो मर जाते हैं, फिल्टर नहीं होता है पानी से, ओके। रिमेंबर दिस। सो क्लोरीनेशन टैंक, so this with the help of this chlorination tank आपने क्या किया? उसके जो बैक्टीरिया थे, वायरस थे, उनको किल कर दिया और उसके बाद में यहाँ पे आप वाटर टैप है, नाउ यू कैन यूज दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग। समझ में आया? प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, हाउ दिस वाटर इज प्यूरिफाइड, okay, how this water is purified by the different compartments, by the different components, okay. So I hope that you have understood this. So based on this, we'll see now